ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫਤਿਹ ਐਡੂਕॉम। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 151 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ empowers the president to send back any matter for reconsideration by the council of ministers। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ 42nd ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਅਤੇ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1978 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮੈਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡੀ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਰੀਕਨਸੀਡਰਡ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਟੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਅੰਡਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜਾਂ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ 1, 3 ਅਤੇ 4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਇਨ ਅਗਸਤ 1952। ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਆਲ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫ ਆਲ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਦੇਅਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਸ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਫ ਯੂਟੀਜ਼, ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅਡਲਟਰੀ ਇਜ਼ ਔਰ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਅਡਲਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਡਲਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਓਨਲੀ ਦਾ ਵਾਈਫ ਕੈਨ ਬੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਅਡਲਟਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੋਥ ਮੈਨ ਐਂਡ ਦਾ ਵੂਮਨ ਕੈਨ ਬੀ ਅਕਿਊਜ਼। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਸੋ 497 ਜਿਹੜਾ IPC ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਅਡਲਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲੀ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਵਿਦ ਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਕੇਸ ਵਾਈਫ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਬੀ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਐਜ਼ ਅ ਅਬੈਟਰ। Section 497 of IPC made adultery a criminal offence है for men but did not penalize women। ठीक है जी। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਟ 2 ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕੌਂਟਰੈਕਟਸ ਐਂਡ ਸੂਟਸ। ਸੋ ਪਾਰਟ 12 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਫਰੋਮ ਆਰਟੀਕਲ 264 ਤੋਂ 300 ਵਿਦ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕੌਂਟਰੈਕਟਸ ਐਂਡ ਸੂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੀਡ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੇਅਰਫੁਲੀ।
सो फर्स्ट स्टेटमेंट हैगी है ओनली हाई कोर्ट्स आर एम्पावर्ड। वैसे ओनली वाले ज़्यादातर ना मतलब चांसेस होंगे कि स्टेटमेंट गलत ही होंगी है, ठीक है। ओनली हो गया, ऑलवेज हो गया, नैवर हो गया, इदां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म्स यूज़ करते हैं समटाइम्स। सो ओनली हाई कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इशू रिट्स। सो सब तुहानूं पता है कि हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के अंडर जी है एम्पावर्ड आ रिट्स इशू करने लई। जिहड़ियां रिट्स आपां पिछली क्लास दे विच पढ़ियां सीगियां 5 तरह दियां, और इस तरह ही सुप्रीम कोर्ट जी है आर्टिकल 32 के अंडर इशू कर सकती है रिट्स, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। नेक्स्ट है, सो फार प्रेजिडेंट हैज़ मेड जस्ट वन रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन फॉर राम जन्मभूमि केस इन 1993। सो ये भी स्टेटमेंट जी गलत है। एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन के सो फार प्रेजिडेंट ने जोड़ा है 2 बारी रेफरेंस दी है सुप्रीम कोर्ट को। नैक्सट है, ओरिजिनल यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एंड रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट्स अगेंस्ट द सेंटर। सो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कि जी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो अंडर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स नहीं आते हैं, ठीक है। सो स्टेटमेंट सिर्फ 3 ही करैक्ट है। सो ये जोड़ा पर लास्ट स्टेटमेंट पढ़ी है कि 262 जोड़ा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट को मना करता है कि वो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के उत्ते कोई भी यूरिस्डिक्शन अपनी नहीं रखेगी। अकॉर्डिंगली इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स 1956 एक्ट जोड़ा लिया गया सीगा इस चीज़ को करने लई। सो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल यूरिस्डिक्शन किहड़े मैटर्स ते नहीं है, जिवें कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हो गए, ऑर्डनरी डिस्प्यूट्स ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स हो गए, या फिर डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट कोविनेंट रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। सो ये भी स्टेटमेंट जी सी अपने क्वेश्चन के सी थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है जी, है वाली राइट। सो ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल यूरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आती। नैक्सट है, फाइनांस कमीशन रिकमेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स टू द प्रेजिडेंट। सो पहली जी फाइनांस कमीशन आर्टिकल 280 के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता बाय प्रेजिडेंट फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हैगी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नैट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रिस्पैक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स। सो बिल्कुल ठीक है कि जो टैक्सेस तो रेवन्यू वगैरह आता सेंटर स्टेट के एलोकेट किया जाता है, ठीक है। दैन उस तो बाद प्रिंसीपल्स विच शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर। कई तरह दी ग्रांट्स दित्तियां जांदियां, उहदे सिद्धांत की फॉलो करने हैं, ठीक है। वो सारियां चीज़ां इहदे विच कंटेंट हुंदियां ने। Next है, the measures needed to augment the consolidated fund of the state to supplement the resources of panchayats and municipalities in the state on the basis of recommendation made by State Finance Commission, ठीक है। सो ये भी ठीक है। Next है, any other matter referred to it by the president in the interest of sound finance। सो ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां एक अगेन मैं तुहानूं कहूँगी कि स्टैंडर्ड बुक जिहड़ी अपनी लक्ष्मीकांत दी, ठीक है। सो ये सारियां चीज़ां उहदे विच तुहानूं मिल जाणगियां आसानी दे नाल, सो उन्होंने फॉलो करोगे तो। नैक्सट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम परसन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। सो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई सी 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। नैक्सट है, इन द ईवेंट ऑफ डैथ ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। सो जिवें प्राइम मिनिस्टर की डैथ के उत्ते कौंसल अपने आप डिजोल्व हो जाती है, सिमिलरली स्टेट के भी अगर चीफ मिनिस्टर की डैथ हो जाती है तो कौंसल जी ऑटोमैटिकली डिजोल्व हो जाती है। नैक्सट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजनस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय पार्लीमेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। सो सिंपल मेजोरिटी रिलेटेड आप पहला भी पुरानिया वीडियोज़ के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस के कर चुके हैं काफ़ी चीज़ां, ठीक है। फिर दोबारा आईयां ने। सो देखिए तो प्रोविजनस कंसर्निंग इस्टैबलिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट हो गया, या फैडरल जुडिशरी हो गया, या रिप्रजेंटेशन इन स्टेट्स इन पार्लीमेंट हो गया, ऑफ स्टेट्स इन पार्लीमेंट। सो ये सारियां कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट्स चाहिए ने, लेकिन आर्टिकल्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप लई जिहड़ा है सिंपल मेजोरिटी नाल कीता जा सकता है। सो द राइट आंसर हैर इज़ ऑप्शन डी, ठीक है जी। मैं इन्हूं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि आप पिछलियां वीडियोज़ दे विच ऑलरेडी ये बारे जिहड़ा आ डिस्कशन कर चुके हैं। नैक्सट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। हुण इहदे विच जिहड़ा आ 360 आर्टिकल के बारे चीज़ां पुछियां हैगियां। 360 तुहानूं पता है आर्टिकल जिहड़ा इट रिलेट्स टू
फाइनेंशियल एमरजेंसी, सो इट एम्पावर्स प्रेजिडेंट टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल एमरजेंसी, बिल्कुल ठीक है। सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट इज डिक्लेयरिंग द फाइनेंशियल एमरजेंसी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू कि उन्होंने कोर्ट के चैलेंज नहीं किया जा सकता, सो एक गलत है। इनीशियली 38th अमेंडमेंट के जी चीज़ की गई सी कि अगर प्रेजिडेंट फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो वो सैटिस्फैक्शन जी है दैट वुड बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, उन्होंने कोई भी कोर्ट के चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन लेटर ऑन जोड़ा आ 44th अमेंडमेंट 1978 के नाल इस चीज़ को जोड़ा वापस ले लिया गया। 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जी हुई सी वो प्रोविजन को डिलीट करके तो प्रेजिडेंट की जी सैटिस्फैक्शन है उन्होंने जुडिशियल रिव्यू के रखा गया कि अगर वो फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर करता है। दूसरी गल, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जोड़ा है फाइनेंशियल एमरजेंसी को अपने आप भी रिवोक कर सकता है विदाउट दी अप्रूवल ऑफ पार्लीमेंट, ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट सी, सो ये भी याद रखियो। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज बॉडीज़ हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजनस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो ये तिन्ने ही स्टेट फाइनेंस कमीशन, मैट्रोपोलिटन प्लैनिंग कमेटी, कमीशन एंड कमेटी ऑन पार्लीमेंट एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, सो तिन्ने ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर जिहड़ियां इन्हां दीयां प्रोविजनस ने। अगर आप स्टेट फाइनेंस कमीशन की गल करिए तो आर्टिकल 243I के अंडर गवर्नर जोड़ा आ वो स्टेट फाइनेंस कमीशन जिवें प्रेजिडेंट 280 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन, इस तरह गवर्नर जोड़ा 243I के अंडर जोड़ा स्टेट का फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉर अ 5 ईयर टर्म। इस तरह कमेटी फॉर मैट्रोपोलिटन प्लैनिंग जी है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243ZE एंड प्रोविजनस फॉर कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लीमेंट एंड ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज दोज आर कंटेन्ड अंडर आर्टिकल 344 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है रूल 377 कंसर्निंग द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोक सभा फ्रिक्वेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटिड टू, सो रूल 377 जोड़ा है बेसिकली हैगा कि अगर कोई भी मैटर जोड़ा पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स के अंडर नहीं आता या फिर किसी होर रूल के अंडर नहीं आता उन्होंने असी 377 रूल के अंडर जोड़ा आ रेज कर सकते हैं, सो द आंसर इज़ ऑप्शन ए। नैक्सट है अ वोट ऑन अकाउंट इज़ ग्रांटेड बाय पार्लीमेंट टू द गवर्नमेंट, सो आप ये बारे अगेन पहला भी 2 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, सो ये 3rd क्वेश्चन है। सो वोट ऑन अकाउंट मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जिवें बजट पास हुंदा है तो उस तो बाद मतलब पूरा जिवें बजट डिस्कस हुंदा है बजट पास होने तक का जिहड़ा टाइम हुंदा है, ठीक है, और मतलब मार्च का पूरा महीना ला लो तुसीं, उस टाइम ते गवर्नमेंट ने अपने जिहड़े एक्सपैंडिचर मीट करने हुंदे आ उस पर्टिकुलर पीरीयड वास्ते जिहड़ा उन्हां नूं एक्सपैंडिचर चाहिदा हुंदा है उन्होंने जिहड़ा कंसोलीडेटेड फंड चों कढवाउण वास्ते वोट ऑन अकाउंट जिहड़ी है वो ग्रांट करवाई जाती है, ठीक है जी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हैगी है सैंक्शन मनी फॉर स्पेंडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर वैन द बजट हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड, सो बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट है इनकर एक्सपेंडिचर्स दैट कैन नॉट बी क्लियरली स्टेटेड एज एक्सप्लेन, सो ये गलत है, सो ऑप्शन आएगी ओनली ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमेटीज़ इज़ नॉट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, सो प्राइम मिनिस्टर टोटल जड़ियाँ 8 कैबिनेट कमेटीज़ होंदियां ने जिहदे विचों 6 जड़ियाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर करते और 2 जड़ियाँ ने वो होम मिनिस्टर जोड़े आ वो चेयर करते हैं। कमेटी ऑन कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लीमेंटरी अफेयर्स जड़ियाँ ने ये होम अफेयर्स के मिनिस्टर्स जोड़े ने वो चेयर करते हैं, जबकि बाकी दियाँ जड़ियाँ 6 कमेटीज़ ने जिहदे विच अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन पोलिटिकल अफेयर, ठीक है जी, दैन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ ते इंप्लॉयमेंट एंड स्किल डिवेलपमेंट, ये सारियां जड़ियाँ प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। नैक्सट है ये और दूसरी गल ये एक्सट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ होंदियां ने मीनस दोज डोंट हैव एनी मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सो रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड फॉर देयर इस्टैब्लिशमेंट। नैक्सट है 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जी रिसेंटली पास हुई है, सो इट इनेबल्स रिजर्वेशन फॉर इकनॉमिक वीकर सैक्शन, ठीक है जी, 10% रिजर्वेशन जी लागू की गई सी, सो इस अमेंडमेंट के अंडर की गई सी, सो ये एक क्लॉज जोड़ा आ 6 ऐड किया गया आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। नैक्सट है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2019 एम्स टू, सो ये अमेंड किया गया सीगा टू अबॉलिश नो डिटेंशन पॉलिसी इन स्कूल्स, ठीक है, नो डिटेंशन पॉलिसी जी सी वो कि 8वीं के जोड़े बच्चे आ उन्होंने फेल नहीं करना आ, ठीक है, सो ये पॉलिसी नो डिटेंशन मतलब किसी बच्चे डिटेन नहीं करके रखना, सो ये पॉलिसी अबॉलिश किया गया थ्रू दिस एक्ट। नैक्सट अगर रेगुलराइज ऑल कंट्रैक्चुअल स्टाफ हायर्ड अंडर RT एक्ट, तो ये गलत है,
नेक्स्ट है द पर्सनल लॉज 2019 रिमूव्स विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्राउंड फॉर डिवोर्स। सो ये भी उस टाइम ते जो 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम होया आ सो उस टाइम ही ये लेप्रोसी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਸਨਲ ਲॉज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਗਰਾਊਂਡ ਫॉर ਡਿਵੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਪਰੋਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर डिसकुआलीफिकेशन ऑफ पंचायती मैंबर्स। सो आर्टिकल डिसकुआलीफिकेशन का जोड़ा है 243F है। 243C की गल करिए तो ये कंपोजिशन ऑफ पंचायत होंगे। डी जोड़ा आ ये होंगे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अंडर पंचायत। ई जोड़ा है दैट इज़ रिलेटिंग टू ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। नेक्स्ट है हु इशूज़ नोटिफिकेशन फॉर द इंक्लूजन ऑफ एरियाज अंडर एनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सो कमिश्नर कॉरपोरेशन जोड़ा आ ये नोटिफिकेशन जोड़ा इशू करता है अगर कोई भी एरिया जोड़ा उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर इंक्लूड करना होए तो। नैक्सट है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वॉज अ फंडामेंटल राइट। सो इनू केड़ी अमेंडमेंट के नाल ऐड किया गया सी 97th अमेंडमेंट के नाल 2011 के नाल। और राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नू फंडामेंटल राइट बनाया गया सीगा अंडर आर्टिकल 19। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डील्स विद द टेबल ऑफ प्रेजिडेंस ऑफ रैंक एंड ऑर्डर ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो जोड़ा टेबल ऑफ प्रेजिडेंस या ऑर्डर ऑफ प्रेजिडेंस हुंदा आ इनू अपना प्रेजिडेंट जोड़ा है उन्होंने द्वारा सैटअप किया जाता है। ठीक है, तो इनू जोड़ा मेनटेन करने का जोड़ा जिम्मा हुंदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का हुंदा आ। सो ये स्टेटमेंट गलत है। नैक्सट है प्राइम मिनिस्टर टेक्स प्रेसिडेंस आफ्टर द प्रेजिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेजिडेंट। सो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जोड़े आ वो चीफ जस्टिस तो पहला आते हैं, प्रेजिडेंट तो वाइस प्रेजिडेंट तो बाद आते हैं, लेकिन CJI तो पहला आते हैं। सो ये भी स्टेटमेंट जी है गलत है। ठीक है जी। सो ये कुछ जोड़ा आ इन्ना तुसी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो। ठीक है, इस ऑर्डर के जोड़ा आ टेबल ऑफ प्रेजिडेंस हुंदा आ। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। सो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 42nd अमेंडमेंट एडिड पार्ट 4A दैट इंक्लूड्स ओनली 2 आर्टिकल्स। फिर ओनली आ गया 2 आर्टिकल्स नेमली 51 तो 51A। सो ये गलत है। ठीक है जी, 51A जोड़ा आ ये ऐड किया गया सीगा कल्ला इको ही आर्टिकल। ठीक है जी। ड्यूटी टू पे टैक्सेस वॉज एडिड टू 44th अमेंडमेंट मतलब 51A। सो इदां दी कोई ड्यूटी जी ऐड नहीं की गई। सो ओनली 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है जी। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ डू नॉट कवर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ लाइक कास्टिंग वोट्स, पेइंग टैक्सेस, फैमिली प्लैनिंग एंड सो ऑन। इनफैक्ट ड्यूटी टू पे टैक्सेस जी रिकमेंड जरूर की सी स्वर्ण सिंह कमेटी ने, बट इट वॉज नॉट इंक्लूडिड। नैक्सट है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 हैगी है डीलिमिटेशन कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 80। सो डीलिमिटेशन कमीशन जोड़ा हर सेंसस तो बाद कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इसलिए ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना कोई स्टैचुटरी बॉडी है। आर्टिकल 82 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, आफ्टर एवरी सेंसस। दैन उस तो बाद हैगा स्टेटमेंट 2 द प्रेजेंट डीलिमिटेशन ऑफ पार्लीमेंट्री एंड असैंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन 1991 सेंसस से गलत है। प्रेजेंट जो डीलिमिटेशन है पार्लीमेंट्री एंड असैंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ये डीलिमिटेशन की होंगे कमीशन बेसिकली बाउंड्रीज नू करना होंगे मार्क। ठीक है, सो ये प्रेजेंट जो 2001 कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री जी किन्ने च रहेगी, राइट। सो ये 2001 के अकॉर्डिंगली जोड़ा फिक्स किया गया है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स जी गलत है। आर्टिकल 80 की इन्हें गल की, आर्टिकल 80 जोड़ा वो राज्य सभा की मैक्सीमम स्ट्रेंथ जी दसी जाती है, दैट इज़ 250। नेक्स्ट है एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज अ पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक्ट। सो ये बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन एज OCI इफ ही सेटिस्फाइड दैट ही और शी हैज़ शोन डिसअफेक्शन टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक ने। ठीक है, OCI जोड़ा वो पर्सन होंदा जिहड़ा इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होंदा आ। ते दूसरी गल कि कोई भी बंदा जिहड़ा उहदी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा OCI रद्द कर दी जाती है अगर वो कोई जी OCI है उन्होंने obtain करता है बाय मीनस ऑफ फ्रॉड, फॉल्स रिप्रजेंटेशन, कंसीलमेंट ऑफ एनी मटीरियल फैक्ट, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कोई भी किसी भी तरह की डिसअफेक्शन शो करता है अंडर एनी प्रोविजनस ऑफ सैक्शन 7D ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑन म्यूनसिपैलिटीज़।
सो पहला हैगा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC/STs इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपूलेशन इन म्यूनसिपल एरिया सिमिलर टू पंचायत्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਪੰਚਾਇਤਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तीसरा द प्रोसीजर फॉर मेनटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट वुड बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नर। सो ये गलत आ ठीक है, ये स्टेट लॉ के हिसाब के नाल जिहड़ा आ ये अकाउंट्स एंड ऑडिट का मेनटेन किया जाता है। नैक्सट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नगर पंचायत्स फॉर स्मॉल अर्बन एरिया। सो ये भी बिल्कुल ठीक है। सो सिर्फ स्टेटमेंट 3 गलत है, 1 to 4 जिहड़ा आंसर आऊगा। 5th भी हैगी है, 5th भी आ जाऊगी। 1/3 ऑफ द सीट्स जिहड़ियां रिजर्व होंदियां ने फॉर वुमेन एक्सक्लूडिंग, बट ये लिखा एक्सक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर SC/ST। सो ये इनकलूडिंग होंदियां ने ठीक है जी। सो ये भी एक अजीब जिहा वर्ड इत्थे आ गया। सो इदां दे जिहड़े वेग वर्ड्स होंदे इन्हां नूं भी आइडेंटिफाई करना होंदा है। सो 1 to 4 आंसर आएगा ऑप्शन ए ठीक है जी। नैक्सट है बस गलत सॉरी खत्म हो गए जी। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ स्टार्ट करांगे नैक्सट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ 178th क्वेश्चन तो ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू।